Hello students, I'm Anju Prajapat. Welcome to our YouTube channel Krishnam Group of Education of Krishnam Public Senior Secondary School. Today we going to start chapter 6, Seeds Become Plant. It means how a seed change in plant. So let's start the chapter. In your previous classes, like in fourth class, third class, second class, first class, you have read about the plants. Okay, you have read about the plants, that plants are very useful for us. They gives us oxygen, they gives us fruits, seeds, grains, gram, etc. Different parts of plant are used as food in different ways. We eat different parts of plant like seed. In seed, rice, wheat, all the cereals are the seeds of plant, and they are also part of plant. Okay, like fruit is also the part of plant. Vegetables are also the part of plant. So we eat different parts of plants in different ways as food. Okay, so first of all, we know that trees are very important for us. Why? Because they gives us oxygen. Because of this we are alive today. Trees gives us various materials and maintain environmental balance. So trees are very essential. Okay, essential, it means needful. So how we will discuss the formation of plant? In this chapter we discuss about the formation of plant. Before this, we take some names of part of plant. Rice, which part? Seed. Okay, rice is seed of plant. Apple is fruit of plant. Carrot is root of plant. Pulse, millet is seed of a plant. Radish is also root of a plant, and onion is also root of plant. Okay, these all are the parts of plant. Now we discuss about the formation of a new plant. Okay, we learn this chapter with help of two characters, Monu and Guddi. They are siblings. Okay, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, इट मीन्स नए पौधे का फॉर्मेशन कैसे होता है. हाउ द प्लांट सीड चेंज इन प्लांट. ओके, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन. मोनू से गुड्डी, look, many new and small plants are seen under the neem tree. Okay, Monu said to Guddi, और मोनू से टू गुड्डी. ओके, लुक, देखो, मेनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री. जो बहुत से छोटे स्मॉल प्लांट्स और न्यू है वो नीम के ट्री के नीचे आपको दिखाई देंगे. एंड इन द पॉट ऑफ होली बासिल, नोन एज तुलसी इन हिंदी. ओके, बेसिल का मीन्स क्या होता है? तुलसी का पौधा. ओके, इसके नीचे भी आपको क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे न्यू और स्मॉल प्लांट्स दिखाई देंगे. देन गुड्डी आंसर्ड मोनू, यस ब्रदर, हाँ भाई, देर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स. ओके, देर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स. फ्रॉम वेयर हैव दे कम? देन ही आस्क्ड हिज ब्रदर दैट फ्रॉम वेयर हैव दे कम, कि वो प्लांट कहाँ से आए हैं. हु ब्रॉट दीज प्लांट्स हियर, उनको यहाँ कौन लेकर आया है. देन मोनू आंसर्ड गुड्डी, दीज प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ऑन. दीज प्लांट्स ग्रो देयर ऑन, वो अपने आप से ग्रो किए हैं वो प्लांट. इन द रेनी सीजन, इन रेनी सीजन्स में.
in the days of rain. Then Goody asked again his brother, "Brother, I have uprooted one of these plants." मैंने इनमें से किसी एक प्लांट को क्या कर लिया है? Uprooted. It means उखाड़ लिया है. I have uprooted one of these plants. Look what is seen in it. क्या आप इनमें देख सकते हो वो? Monu. Then Monu answered Goody, "This is a chickpea." Chickpea it means चना. चने के प्लांट को क्या बोलते हैं हम? चिकपी प्लांट. एंड वी कैन सी इट्स रूट कमिंग आउट ऑफ द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड. ओके, ये किसका प्लांट है? दिस इज अ चिकपी प्लांट. चने का पौधा है और हम इसकी रूट्स जो बाहर आ रही है लाइक थ्रेड, उन्हें हम देख सकते हैं. ओके, द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली. और जो पूरा पौधा फॉर्म होता है वो किसके थ्रू होता है? ओनली फ्रॉम दिस रूट. लेट अस पुट इट बैक इन द सॉइल. अब हम क्या करें? इसे वापस सॉइल में डाल दे, मिट्टी में वापस इसे ग्रो कर दे. ओके, नाउ देयर इज अ फिगर of germination of a chickpea plant. Okay, in this picture a procedure of formation of plant is given in which you can see. Okay, first this is chickpea. It is now growing more and become a plant. Okay, now we discuss about the germination of a seed. सीड से कैसे स्प्राउटिंग होती है. ओके, कैसे वो अंकुरित होता है. ऑन द फेस्टिवल ऑफ विच बारस. ओके, इट इज अ फेस्टिवल वत्स द्वादशी. इसे और क्या कहा जाता है? वत्स द्वादशी. गुड्डीज मदर सोक्ड मूंग. गुड्डी की मदर ने मूंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्राम, वो सोक्ड इट मीन्स भिगोना. देन गुड्डीज मदर सोक्ड मूंग, ग्रीन ग्राम. मोठ इज मोठ बीन. ओके, these are the type of dals. Okay, and chana, chickpea, and chana is called chickpea in English. Grains in water. Okay, Goodie's mother soaked moong, moat and chana grains in water and tied them in a cotton cloth. और बाद में उनको किस में बांध दिया? कॉटन क्लॉथ में. ओके, tied them in a cotton cloth. The next morning when she took out the moong, moat, chana seeds for worship. Next morning, okay, next morning उसकी मम्मा ने जब मूंग, मोट, चना सीड्स को निकाला फॉर वर्शिप, पूजा के लिए, गुड्डी आस्क्ड हर मदर. देन गुड्डी ने क्वेश्चन किया अपनी मदर से, अपनी मम्मा से. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? लेट्स सी. Goody asked her mother, "Mother, what is this thread like white outgrowth emerging from inside the green grams?" Okay, that Goody asked her mama, what is this thread like white outgrowth? कि ये जो थ्रेड की तरह, थ्रेड इट मीन्स धागे की तरह जो आउटग्रोथ, इमर्जिंग मीन्स निकलना. ओके, निकली है ग्रीन ग्राम में से, वो क्या है? व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक आउटग्रोथ? ओके, देन मदर आंसर्ड गुड्डी, दिस इज इट्स रूट. ओके, ये क्या है? इसकी ग्रीन ग्राम की रूट्स है. आफ्टरवर्ड्स द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली. क्योंकि जो प्लांट है वो केवल किससे फॉर्म होता है? रूट से. ओके, रूट इज ओनली फॉर्म्ड द होल प्लांट. दिस इज नोन एज जर्मिनेशन. ओके, होल दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन.
So we learned that the thread like outgrowth from seed is called germination. There are some activities. You read and do these activities and observe the changes and write down in this table. Okay. Now we discuss about sprouted chickpea seeds. It is a picture showing sprouted chickpea seed. These are the threads like outgrowth in their roots. Okay, it is called their roots and thread like outgrowth. It is from the plant. ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रिजल्ट. अब आपको क्या करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है और उनके क्या करने हैं, जो आपको चेंजेस शो हो रहे हैं वो आपको इस टेबल में राइट डाउन करने हैं. ऑन द डे ऑफ नवरात्रा स्थापना वी ऑल डू दिस. ओके, वी ऑल सेलिब्रेट नवरात्रा. You must have seen white millet, and white millet is known as jawar. Okay, grown in nearby temples and houses also. आपने देखा होगा कि नवरात्रा स्थापना के दिन लोग वाइट मिलेट, इट मीन्स जवार को टेम्पल्स में और हाउसेस में ग्रो करते हैं, उगाते हैं. Take a transparent container, put different types of seeds in it and cover the seeds with soil. आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लेना है, एक बोल लेना है एंड पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स. और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, इट मीन्स अलग अलग प्लांट के सीड्स लेने हैं और उसको सॉइल में कवर कर देना है. नाउ नोट द चेंजेस गोइंग ऑन इन द कंटेनर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. और आपको फिर उन चेंजेस को इस टेबल में लिखना है, राइट डाउन करना है. नाउ सम प्लांट्स हैव नीड सीड टू ग्रो बट सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड. नाउ वी डिस्कस द प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स. ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स. आपने जरूर देखा होगा स्प्राउट्स को. स्प्राउट्स इट मीन जर्मिनेशन, अंकुरण. ऑन द सरफेस ऑफ पटेटोज केप्ट इन योर होम. जो आपके घर पे पटेटोज रखे हुए हैं उनकी सरफेस पे आपने जर्मिनेशन देखा होगा, जस्ट लाइक दैट. ओके, इन दिस पिक्चर showing the germination in potato. Okay, there is no seed, it germination without seed. This picture showing the germination without seed. Okay, now come to the point. If we bury this potato, अगर हम इस potato को bury, it means soil के अंदर दबा देते हैं, गाड़ देते हैं. Then in a pot containing soil, एक पॉट जिसके अंदर क्या हो, सॉइल हो. अ पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट. पोटैटो प्लांट इसमें से ग्रो करेगा. सिमिलरली इफ वी पुट अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम इज अ प्लांट. ओके, एंड इट्स लीफ, इफ वी टेक इट्स लीफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा. ब्रायोफिलम को हम क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा. ब्रायोफिलम इज ऑल्सो नोन एज पत्थर चट्टा. इन अ पॉट कंटेनिंग ऑयल, एक पॉट लेंगे जिसके अंदर क्या हो, ऑयल हो. देन अ न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम दैट लीफ. तब क्या होगा, एक नया प्लांट है वो इस लीफ से ग्रो करेगा. लुक एट दिस पिक्चर. This is bryophyllum leaf and it is the germination of this plant without any seed. Okay, there are some activities you can do these
activities. First, Harka buried a twig of mint plant. Twig, it means टहनी. अगर हम किसी मिंट की प्लांट की टहनी को उगाते हैं तो वो क्या करती है, ग्रो करती है. पुदीना, ओके, along with its root in the wet soil. After a few days he saw that many mint plants grew in it that place. ओके, जब उसने प्लांट लगाया तो सॉइल में, इसके बाद वो कुछ दिनों के बाद देखती है कि वहाँ पे क्या है, बहुत सारे मिंट के प्लांट्स हैं. देयर आर मेनी प्लांट्स ऑफ मिंट. एट मीनाज होम देयर वॉज अ मनी प्लांट ग्रोइंग इन अ ग्लास बॉटल. ओके, मीना के घर में ग्लास की बोतल में मनी प्लांट उगा हुआ है. हरका सो इट एंड आस्क्ड हर, हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट, कि आपने इस प्लांट को कैसे उगाया. मीना टोल्ड हिम दैट इफ वी पुट अ ट्विग अलॉन्ग विद इट्स बड इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर और इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल. अगर हम इसकी ट्विग को इसके बड के साथ लेंगे तो क्या होगा, इसे हम वाटर कंटेनिंग बॉटल में भी रख सकते हैं और सॉइल कंटेनिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं. देन अ प्लांट वुड ग्रो फ्रॉम इट. लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन. तो वहाँ से क्या होगा, नया पार्ट ग्रो होने लगेगा. ओके, देर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम their stem, root and leaf. Potato grow with the help of stem. Money plant also grow with their stem. Mint plant grow with their root. Rose is also grow with the help of stem. Jasmine is also grow with the help of stem. And bryophyllum is grow with the help of their leaf. Okay. There are some questions. We already read this chapter. Find out the answers. Okay. You do yourself. Now we discuss about the dispersal of seeds. Dispersal is, it means spreading. फैलाव, seeds का spreading. Meera saw a fig plant. People. Okay. Fig plant, it means people का plant on the wall of a टेम्पल. मीना ने एक टेम्पल की वॉल पे पीपल का प्लांट देखा. ओके, मीना सो अ फिग प्लांट ऑन द वॉल ऑफ पीपल टेम्पल. शी थॉट दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट, इसे जरूर किसी ने उगाया होगा. शी आस्क्ड हर फादर एंड ही टोल्ड हर दैट द सीड मस्ट हैव रीच्ड देयर थ्रू सम बर्ड्स और पिजन एक्सेट्रा. ओके, तो उसने उसके फादर से पूछा कि वह जो प्लांट है वो किसी बर्ड या पिजन ने वहाँ पे छोड़ा होगा, पहुँचाया होगा. सिमिलरली सीड स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस विद द हाई स्पीड विंड. दे फ्लो विद वाटर और may stick on the beak of the birds and body of the animals. okay, तो इसी तरीके से जो सीड है वो स्कैटर होते हैं. स्कैटर का मतलब होता है फैलना. डिफरेंट प्लेस पे स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं. किसके थ्रू, हाई स्पीड विंड, तेज हवा के साथ, वाटर फ्लो के साथ एंड कई जो बर्ड्स होते हैं उनके बीक के साथ चिपक के. ओके, वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं. दे स्कैटर वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड विंड, फ्लो ऑफ वाटर, में स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स. दिस फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज नॉन एज डिस्पर्सल. ओके, ये जो फिनोमिनन है, धारणा है, वो क्या कहलाती है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. नाउ सम प्लांट्स आर कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. Many people travel to foreign countries for business
पर्पस। जो कुछ लोग होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में बिजनेस के पर्पस से जाते हैं। ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स को भी ले जाते हैं। द प्लांट्स मेंशन्ड बिलो हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, और देयर आर सम प्लांट्स दे कम फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, when people migrate and settle down at other place, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और वो वहाँ सेटल हो जाते हैं, when people migrate, sorry, plants also shift from one place to another place, just like that people go one place to another place, therefore the plants also shift from one place to another place. Go through the table given below in which the names of plants and the place from where they have come is mentioned. और नीचे की टेबल में दिया हुआ है कि कौन से प्लांट फॉरेन प्लांट है और वो कौन सी कंट्री से आए हैं। ओके, टी इज कम फ्रॉम चाइना। ओके, टी इज नॉट द इंडियन plant. Okay, it is come from China. Coffee is also come from foreign country Africa. Ladyfinger is also come from Africa, and cauliflower is not the Indian plant, it is come from Europe. Peas is also come from Europe. There is the map of the world. This picture is map of the world. There are the countries of the world. Okay, there are some foreign trees like eucalyptus, lantana and parthenium. Okay, these are all foreign plants which come from foreign in India. द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते थे, ब्रॉट अ प्लांट नेम लंताना, वो एक लंताना नाम का प्लांट लेके आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड प्लांटेड इट इन अ गार्डन इन कोलकाता सिटी, और उसे कहाँ पे लगा दिया? कोलकाता सिटी में। दे ग्रो दिस प्लांट इन कोलकाता सिटी। A British officer brought eucalyptus from Australia and planted it in Nilgiri Hills in Tamil Nadu. एक ब्रिटिश ऑफिसर यूकेलिप्टस का प्लांट लेके आए और उन्होंने कहाँ लगा दिया? नीलगिरी हिल्स में, जो कहाँ है? These hills in Tamil Nadu. That is why it is also known as नीलगिरी, इसलिए यूकेलिप्टस को और क्या बोला जाता है? नीलगिरी भी। Okay, it is also known as Nilgiri. When India imported wheat from the United States of America, some seeds of Parthenium, it means gajar घास, came along with the unnecessarily spread in our country. और ऐसे ही यूएसए से जो कुछ सीड्स थे पार्थेनियम, जो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गाजर घास, वो यहाँ पे आए और पूरी कंट्री में अननेसेसरली फैल गए। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर। वी लर्न दैट germination of seed takes place in favorable conditions only. We all know that a tree can survive in favorable conditions. It means they adapt to condition of this place where they grow. Okay, वे जब उस कंडीशंस के लिए अडेप्ट होंगे, अनुकूल होंगे, तभी वो वहाँ पे ग्रो करेंगे. Some plants grow without seeds like potato, bryophyllum. Okay, seed dispersed by scattering here and there in different ways. सीड्स का डिस्पर्जन और जो स्कैटरिंग के थ्रू होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, जैसे वाटर फ्लो, हाई स्पीड विंड,
on stick on the beak and animal's body from one place to another place. Okay, now this chapter is complete. You have any doubt, please write in comment box. Thank you for watching my video. Please subscribe our channel. Thank you.